ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਦੇ। ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੌਮ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। वर्ल्ड बैंक का हेड जो पंजाबी है। तो हमारे पास ऐसे गुरु हैं, ऐसी गुरबानी है कि कंधे पर हाथ है पंजाबियों के, उन गुरुओं की बानी का और उन शहीदों के बलिदानों का। इसीलिए सबसे खुशकिस्मत और सबसे ताकतवर पंजाब ही होगा, पंजाब ही करना। एक बारी पंजाब दे विच कोई काम शुरू कर लिया, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਫਿਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਉਲਟ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਏ, ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ 20 ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਈਏ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਵ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਘਲ ਸਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 200, 250 ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੌਮ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ.ਵੀ. ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਸਡ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ 20 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਰਹੂ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਐਸੀ FD ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
कि मुकनी नहीं कदे। सो साडे कोल कल्चर है, असी हसन खेडन नचन टप्पण वाले लोग हाँ। कोई भी विआह कोई शादी पंजाबी भंगड़े बिना ना कंप्लीट मनी जाती है, ना पंजाबी खाने बिना। और पंजाबी ने जिथे जाणगे अपना खाना ते गाना ये नाल लेके जाते हैं। तुम जेड़े मर्जी ढाबे ते रुक जाओ, नाले तो आलू का परौंठा है, नाल ही कैसटां ते सीडियां की दुकान होंदी है। इधरले पासे खाना है, इधरले पासे गाना है, ये नाल ही लेके जाते। सो इसे करके पंजाब जिहड़ा वो अलग है, क्योंकि भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। अगर इंडिया, अगर देश हमारा, चलो इंडिया कहता मैं, इतराज होंदा कईयां नूं। भारत, हिंदुस्तान, तो ये साडा जे देश जिहड़ा है, जे नंबर 1 देश बनाउणा है दुनिया च, ओदी इक्को एक छोटी जी शर्त है बस, पंजाब नूं नंबर 1 सूबा बना दो, उस तो बाद फिर देश नंबर 1 बनूगा। इंडस्ट्री पक्षों, एजुकेशन पक्षों, हैल्थ फैसिलिटीज पक्षों, कल्चर पक्षों कोई कमी नहीं। असी जदों दी सरकार बनी असी लगे हुए हैं, असी हैल्थ वाले पासे काम कर रहे हैं, असी मैडिसिटी साडा बन रहा है, तैयार हो रहा है। असी मैडिकल टूरिज्म बल भी खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं। असी मैडिकल कॉलेज बनावांगे, बन रहे ने कपूरथला ते हुशियारपुर शुरू हो चुके हैं। इत्थे भी आ बिल्कुल नाल ही गुआंढ च पड़ोस दे विच ही है जिहड़ा मोहाली वाला मैडिकल कॉलेज। ये सानू आइडिया कित्थों आया कि 23 जिले ने यार, लगभग हर जिले में कोई ना कोई मैडिकल कॉलेज टच करे। ये उदों आया जो मैंने यूक्रेन चो 350 MBBS के स्टूडेंट कढ़ने पै गए बाहर उत्थों, जो लड़ाई लगी। असीं कहा यार 25 साल पहला याद होया मुल्क है, उत्थे जा रहे अपने बच्चे MBBS करन, कारण इत्थे 3 करोड़ लगता, उत्थे 30 लाख लगता है, आ फर्क है। असीं कहा यार क्यों नहीं असीं एजुकेशन MBBS लैवल की इत्थे नहीं दे प्रोवाइड करा सकते, असीं इत्थे करवावांगे, इत्थे साडे पढ़ के बच्चे MBBS करन। फिर UPSC दे असीं ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं 8, और फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेनिंग होगी हर एक वास्ते। उत्थे ही होस्टल होगा रहने वास्ते, उत्थे ही लाइब्रेरी होगी, क्योंकि सिटिंग बहुत करनी पैंदी है UPSC क्लीयर करने लई। सो साडे बच्चे पढ़न, IAS IPS पूरे देश जाके सेवा करन, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनू दसदियां खुशी हो रही है, मैनू मूँह जवानी याद है गल, जदों तो असीं इन्वेस्ट पंजाब सबमिट किया, मैं खुद गया सी, हैदराबाद भी मैं गया, मैं चेन्नई गया, बेंगलोर गया, मुंबई गया, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दा पत्र देन गया कि आओ पंजाब च आओ। तो मैनू दसदियां बड़ी खुशी हो रही है, हुण तक 50,840 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जिहड़ी इत्थे आ चुकी है। MOU साइन नहीं होए, साडे मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, साडे तो दिल दे साइन हुंदे है, साडे तो साइन होके काम चल रहा है। टाटा स्टील लुधियाने दे विच जो इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हां दा 2nd बिगेस्ट ऑफिस बनूगा आफ्टर जमशेदपुर। हजारां मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलूगा। जिंदल स्टील आ रहा है, सनातन टैक्सटाइल आ गई, फ्रैडनबर्ग आ गई, क्लास पहले ही चल रही है कंबाइना च, वर्वियो कंपनी है जो पराली तो ग्रीन एनर्जी बनाती है, जर्मनी की कंपनी, वो आ गए। टैफे आ रहा है, हिंदुस्तान लीवर। तुसी देखो, मैनू हैरानी हुई जो मैं पता लग्या, मैनू किसान कैचअप वो नाभे बनती है, टमाटर नासिक तो आते हैं। मैं कहा जी वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी साडी धरती ते नहीं उग सकती, सानू तुसी वो वैरायटी दस दो, थोड़े 20 किलोमीटर के रेडियस चो सारे टमाटर पैदा करके दिखा देंगे। थोनू
बस ये ना इच्छा शक्ति चाहिए। पंजाब की धरती पर अज बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, पूरे देश से आए हैं। एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, इतनी उपजाऊ धरती है, यहां पर कोई भी बीज धरती में बीज दोगे वो उग जाएगा, कोई भी बीज बीज दोगे उग जाएगा, लेकिन यहां नफरत का बीज नहीं उगता। बस यहां की सोशल बॉन्डिंग जो है, भाईचारक सांझ जो है, उस पर AK-47 भी चली, पास्ट में बम भी गिराए गए, लेकिन सोशल बॉन्डिंग नहीं हमारी कोई तोड़ सकता। ये पंजाब है। हमने वैसी कुछ नेताओं ने लकीरें खींच दी, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने खींच दी, अदरवाइज देश जो है हमारा वो एक गुलदस्ता है। और गुलदस्ता है ना, वो तभी अच्छा लगता है जब अलग अलग रंग के फूल हों। एक ही रंग के फूलों का गुलदस्ता आप ज्यादा देर देख नहीं सकते। हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल का अपना रंग है। तो एक बात मैं और कहनी चाहता हूं, जो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, हम पंजाब के साथ दोस्ती करेंगे, कि यूं तो कोई चीज किसी की अमानत नहीं होती, और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। बच के रहना हमारी दोस्ती से, क्योंकि हमारी दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। मर्जी आपकी है, एक बार दोस्ती हो गई जमानत नहीं मिलेगी भाई साहब। तो मैं इस बात से खुश हूं कि आप लोग इतना एनर्जेटिक माहौल में बैठे हैं, और यहां पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं। और किसी ने मुझे कहा कि कपिल शर्मा को भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हो। कल मैं कुछ बाइट दे रहा था कहीं, मैंने कहा हाँ जी वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। कहते नहीं यार वो तो आर्टिस्ट है। मैंने कहा नहीं, कपिल के आने से पहले कॉमेडी इंडस्ट्री नहीं थी, आजकल कॉमेडी भी एक इंडस्ट्री है। और कपिल, सुनील पॉल, एहसान भाई, ये सब लोग, इन्होंने इंडस्ट्री क्रिएट की है नई, और उसको चला रहे हैं सब सक्सेसफुली। तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये। और लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और सबसे ज्यादा बड़ी उद्योग जो है वो आजकल यही है। आजकल तो डॉक्टर भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हंसना जरूर है। भूल गए हम हंसना, जो हमको भगवान ने दी थी एक नेमत, वो वापस कर दी हमने। मतलब इतनी लंबी दौड़ों में हम लोग पड़े हुए हैं, पता ही नहीं जाना कहां है। जिधर पड़ोसी भाग रहा है उधर ही चलते जाओ। वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है, भागते चले जा रहे हैं। क्यों यार, कुछ देश के लिए करो, कुछ समाज के लिए करो। छीनना क्या हो जाएगा? सुकून नहीं मिलता ऐसे। सुकून मिलता है ईमानदारी के पैसे से, सुकून मिलता है दिल से किसी की मदद करने से। उस सुकून की किसी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं होती। और हमारे पास पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी हमारे गुरुओं ने मानवता के संदेश दिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। पूरी दुनिया की भलाई हर रोज सुबह शाम करोड़ों स्पीकरों में बोला जाता है, गुरबानी में है। वो लोग हैं हम। मैं एक बात सुनानी चाहता हूं आपको। एक गरीब आदमी था, मजदूर था, मजदूरी करता था, सुबह काम पे जाता था, जो शाम तक को कमाता था वही परिवार को खिलाता था। उसने सोचा यार ये तो फिर ऐसी जिंदगी निकल जाएगी, चलो ऐसा करते हैं अगली पीढ़ी तो कम से कम कुछ कर जाए, उनको तो इतना गरीबी में गुर्बत में ना जीना पड़े। तो उसने कहा मैं थोड़ा
पेट काट के गुजारा कर लूंगा, कम खा लूंगा, बच्चे को पढ़ा लेता हूं। तो थोड़ा बचत करने लगा, बच्चे को पढ़ा लिया अच्छे स्कूल में, बच्चा भी इंटेलिजेंट था, जज बन गया बच्चा। बहुत खुशी हुई इलाके में, मजदूर का बेटा जज बन गया। जिस दिन जज साहब ने अपनी कुर्सी पर, अपने पद पर बैठना था, उस दिन उसका पिता भी चला गया कि मेरा बेटा आज जज बन के पहली बार कुर्सी पे बैठेगा। बधाई देने के लिए वो भी चला गया कचहरी में, कोर्ट में। जज साहब के चैम्बर में पहुंचा और बेटे के कंधे पर हाथ रख के, बेटा बैठा था कुर्सी पर, उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, बेटा बहुत बहुत बधाई हो, जज बन गए। अब तुझे मैंने एक बात पूछनी है तुझसे, मुझे ये बता कि इस समय तेरी नजर में दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन हो सकता है तेरी नजर में आज? तो जज साहब ने कहा, पिताजी मैं किसी को भी बरी कर सकता हूं, किसी को भी सजा दे सकता हूं, मैं ताकतवर हूं। बाप ने कहा, एक बार फिर बता दे बेटा, इस समय आपकी नजर में दुनिया का सबसे खुशनसीब, खुश और ताकतवर बंदा कौन हो सकता है? उसने कहा, जी पिताजी मैं। कहता ठीक है बेटा। दिल टूट गया। जाने लगा, डोर के पास खड़े होके पीछे मुंह करके फिर पूछा, बाप का प्यार जागा थोड़ा, कि बेटा बता दे एक बार फिर, इस वक्त दुनिया का सबसे खुशनसीब, खुश और ताकतवर बंदा कौन हो सकता है तेरी नजर में? कहता पिताजी तुम। वो वापस आ गया, कहता यार यही बात मैंने आपसे 15 सेकंड पहले 2 बार पूछी थी, तो आपने अपना नाम लिया था, अब तुम कह रहे हो कि मेरा नाम ले रहे हो। उस जज ने, उस बेटे ने, मजदूर के बेटे ने जवाब दिया, पिताजी जब आपने पहली 2 बार पूछा था ना मुझसे, तब आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस आप जैसे बाप का हाथ जिसके कंधे पर हो, उससे ज्यादा खुशनसीब, उससे ज्यादा खुश और ताकतवर कौन हो सकता है? और जब आपने तीसरी बार डोर के पास जाके पूछा, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर नहीं था। ताकतवर तो तुम ही हो, बस मेरे कंधे पर हाथ है आपका बस। तो हमारे पास ऐसे गुरु हैं, ऐसी गुरबानी है कि कंधे पर हाथ है पंजाबियों के, उन गुरुओं की बानी का और उन शहीदों के बलिदानों का। इसीलिए सबसे खुशकिस्मत और सबसे ताकतवर पंजाबी होगा, पंजाबी करना।